This conference will now be recorded. Namaste everyone. Good evening. Namaste, Good namaste. evening all of you. Namaste, everyone. Welcome to Sahayata's Namaste, Kiranji. Welcome to Namaste, namaste. Sahayata classes. This is the third batch we have started, and to give you an outline of this course, we will first go through a presentation, and then we will tell more about the course. And we will also tell you about Sahayata and our faculty, Kiranji. So if Vigneshji, could you please play the presentation quickly? Okay, I think there is some, okay, that's all right. We can play the presentation later. So I just wanted to tell you all that Sahayata is a socio-spiritual organization with a vision of helping yourself to help others. Helping yourself means how you help yourself in your spiritual growth to become a stronger person, to be able to take the challenges of life, and to also help people around you, like your own. I think that let's take a look at the presentation first, and then continue. Please go through the slide. So the classes we are starting today. Yes, Kiranji, it's sorry, Vigneshji, you can stop the presentation. Yeah, thank you. So I was talking about this course for 15 days, which is 1 hour every day between 8 to 9 p.m. We do, this course is all about creating leaders. Leaders in the sense to take forward Sahayata's vision in a sense of togetherness, in a sense of what do you say, helping yourself and to help others. We create healers, we create counselors. So this course gives you an outline of all the values and all the divine qualities you possess already, and to enhance these qualities, this is one of the main aspect and important thing to take away from this course. And you also will be able to get a lot of the information about the things we impart, the knowledge we impart in all our workshops, and it is also an experiential process. So please welcome to this class. This is just an opening class, inauguration class, and we will also be giving you, Kiranji will be giving you a brief, an outline of this course. So to actually to say a few things about Sahayata. Sahayata is a socio-spiritual organization that has transformed thousands of lives through workshops, through programs, to
through talks in different organizations like Bombay Stock Exchange, National Police Academy, and many educational organizations, and also communities where people are struggling with many problems and challenges which they're not able to face and which they're not able to handle. There's a lot of guidance that is imparted for them through many different teachings, very easy and very simple, although they are profound. And to tell about Kiranji, he has this unique quality and ability to guide people and to transfer divine energy that has the power of healing. His deliverance of the subject, how to map it to ourselves, our lives, comes from his 25 years of experience in guiding people. So I think here I would like to kind of go through some steps. Just what we cover in this course is that we go into prayers, how to do the right prayers, and what are internal and external worlds, and how to handle different problems in both the worlds, and also to kind of understand and empathize other people's problems, and we kind of go into certain processes. So I think Kiranji will explain better, and because he's the faculty of Sahayata International, and he's been doing this for more than 25 years. And I would welcome Kiranji to take over from here. Thank you. Vignesh ji, could you please unmute? Thank you, Mangala ji. Thank you so much. Namaste to everyone. And I'm so happy to see all of you. I'm unable to see a couple of people who have not turned on their videos. So I will request everyone, those whose videos are not turned on, please turn on your videos so that I'll be able to see you. Otherwise, I'll be seeing your names alone. Every one of you, please turn on your videos. There is a button, green button there, camera. It is written camera. So just click on that camera and your video is on. So I'm just waiting for everyone to turn on your videos, please. All those who are hiding, please come out. Namaste, namaste to everyone. Namaste, Krishna ji. So nice to see you once again. Gopa ji, namaste, ma. Kiran ji. Yes, tell me, Sonali ji. आपका ये सेशन में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है दिशा, नमस्ते बोलो. हाय दिशा, हाय, नमस्ते. She is my good friend. Disha is my good friend. Yeah. Kiranji, I would like to introduce my her mamu. I am her mamu. Kiranji, I would like to introduce my friends here. Anita Kamboj. Anita, can you just wave for us? Yeah, that's Nita Kamboj. And Lakshmi, yes. Lakshmi, wave, please. And Smita, could you please wave? Yes, thank you. Smita and Venkateshwar uncle. I didn't see Smita. Smita, yes, I saw. Yeah. She was there at the talk you gave. Venkateshwar uncle, please turn on your video. Yeah. And yes, could you all place your phones in a this way, not this way, because landscape is a better way to see everyone. Yeah. Thank you. Yeah, that's better. Namaste, Suchitra ji. Namaste, ma. Namaste, Suchitra ji. Good. Okay. Yeah. So, yeah, should we start then? Yes. Yeah, please. Kamakya ji, namaste. Kamakya ji, namaskar. Bahut acha.
Okay. So all the others like Suresh ji, Sonia ji, Mahalakshmi ji, Vignesh ji, all of you have attended your previous classes. So yesterday we completed a batch. So that was the second batch. Now these are all coronavirus batches. Coronavirus batches. Because, you know, we get bogged down. Of course, there are external situations, but then internally it is not very difficult to handle. But it becomes difficult when you don't know how to handle. That's all. The word difficult actually is not there. But we make it difficult because we think it is difficult. That's all. Like you take in school, Disha is there. Now she is studying what standard? 9th standard? 10th? Disha? 11th ज्वाइन हुई, अभी कॉलेज ज्वाइन हुई, 10th कंप्लीट की। Sorry. 11th standard. So she goes and she reads some book she is reading and she's not able to understand. She says it's very difficult. It is very difficult. And then she reads again. Then also it's little difficult. Third time, fourth time, fifth time, sixth time it reads. Then she understands what it is saying. And then she feels very good. वो पढ़ेंगी, पढ़ते 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 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ने के बाद वो बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो समझ में नहीं आया तो वो डिफिकल्ट बोल रहे हैं उसको, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो वो इजी ही है ना। वैसे ही हमको कोरोना वायरस नया है, एक बार हमको आदत पड़ जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। ये नहीं क्या है, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आराम से खाना पीना चल रहा है और काम भी ऑनलाइन चल रहा है, हमारा सत्संग भी हो रहा है, अभी कहीं जाने का नहीं है, तो सब कुछ ठीक ही है। लेकिन हमको क्या वो डर या क्या वो है जो कि हम लॉकडाउन में नहीं रह पा रहे हैं। हम कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे, हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम घर में हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अरे हम वहां जा सकते थे, पिज्जा खा सकते थे, बर्गर खा सकते थे, वो कहीं जाना है, शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सब। मैं बोल रहा हूं, अगर हम एक आश्रम जाते हैं, एक स्पिरिचुअल कोर्स के लिए जाते हैं, वहां 1 महीने का अगर सोचिए कोर्स चल रहा है, या हम जिंदल जाते हैं हेल्थ मसाज और हेल्थ क्लेंजिंग के लिए, नहीं तो हम आर्य वैद्यशाला जाते हैं कोटकल केरला में, तो हम कैसे जीते हैं वहां पे? वहां पे पिज्जा खाने को मिलता है क्या? वहां पिज्जा खाने के लिए मिलता नहीं है ना हमको, है कि नहीं? हाँ या नहीं, ऐसा बोलिए। अब अनम्यूट मत करिए, यस नो में ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा करिए, ऐसा, ओके, लाइक दिस, और नो, ठीक है, सब सिंबल्स से करेंगे पहले, क्योंकि मैं जब बात करूंगा सब लोग बात करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा कॉन्फ्रेंस में, इसलिए। अच्छा ठीक है, अभी क्या हुआ, हम लॉकडाउन के सिचुएशन में हमको ऐसा सोचना है कि हमको एक आश्रम गए हैं, खाने में लिमिटेशंस हैं, रहने का ढंग भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना? आप वर्कआउट करने के लिए, जैसे शरीर बढ़ रहा है तो उसको वर्कआउट करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं ना। क्या जिम जाके जो एक्सरसाइज करते हो तो वो तो आसान काम नहीं है, वो तो मेहनत ले रहे हैं। और वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको स्लिम होना है, दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं, हमेशा हम सुख में नहीं रह रहे हैं। आजकल ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक्सरसाइज वर्कआउट सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ही लॉकडाउन में भी हम बिल्कुल एक साधना समझते हुए करेंगे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम उसको सोचेंगे कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसा लॉकडाउन हो गया, अभी कितने दिन ऐसा होना है, ये सब ऐसा सोचते रहेंगे तो आपका सफरिंग और स्ट्रेस ही रहेगा। कितने लोग मेरे बात पर सहमत हैं? हाँ, तो ऐसा करिए, नहीं है तो ऐसा करिए, करेक्ट ना? तो अभी अच्छा तरह साधना कर सकते हैं ना, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं,
हमारा अपना देख सकते हैं, एक थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं, हमारा मन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। एक सिनेमा चल रहा है ना, वो सिनेमा देखिए। अभी मॉल में जाके क्यों सिनेमा देखना है? वहां पे पैसा खर्च होता है, यहाँ पैसा खर्च नहीं होता, यहाँ सब फ्री है, ये क्लास भी फ्री है। तो आप मन में, ठीक है, सुचित्रा जी बहुत हंस रही हैं, हाँ? सब फ्री हो गया। और घर में बैठे बैठे अरे क्यों ऐसा हो गया करके डर रहे हैं, दुख में रह रहे हैं, बिल्कुल आनंद में रह सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा। अभी हम ये जो साधना करने वाले हैं 1 घंटे का दिन में, वैसे 15 दिन, आज सबसे पहला दिन, आज सबसे पहला दिन, ऐसा हम 1 घंटा 15 दिन करने वाले हैं साधना। लेकिन साधना 1 घंटे इंटू 15 नहीं है, 1 घंटा से केवल हमारा गो टू मीटिंग में क्लास, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लास है 1 घंटे का। बाकी 23 आवर्स इन ए डे, 23 घंटे हम साधना करेंगे, अपना जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे वही अप्लाई करेंगे। एक्चुअली मैं आपको एक टीचिंग ऑलरेडी दे चुका हूं, अभी अभी मैं एक टीचिंग दे दिया। क्या टीचिंग है? कि दुनिया में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफिकल्टी हमारा थिंकिंग में है, यही चीज मैं बताया। और अगर हमारा थिंकिंग को देखेंगे, हम चेंज नहीं करने के बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं वो थिंकिंग चेंज करो, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो, नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग ही करना नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि डिफिकल्ट जो बोल रहे हैं वो सच्चाई में डिफिकल्ट नहीं है। हम ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको। पॉजिटिव थिंकिंग करो हम नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग करो तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे, और वो पॉजिटिव थिंकिंग होता ही नहीं है, नेगेटिव ही आता है। आप देखिए, जीवन भर आप पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो तो बंद नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर आपका परिस्थिति क्या है, आपका स्थिति क्या है, हमारा स्थिति, हम बोल रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट है और इसको विश्वास कर रहे हैं। आप देखेंगे सच में डिफिकल्ट है क्या, चेक करेंगे। अगर उसको पीसेस पीसेस करके देखेंगे तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली वो केवल इंसिडेंट है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। काला अच्छा है या बुरा है, बताइए? काला अच्छा है या बुरा है? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अच्छा है, काला अच्छा है। सफेद, सफेद अच्छा है या बुरा है? सफेद अच्छा है। काला बुरा है? काला अच्छा है। कुछ लोग बुरा मानते हैं, मैं कुछ लोग अच्छी बुरा मानती हूँ, मानते हैं, बट लेकिन बुरा है क्या? हाँ मानने वाले की बात मैं छोड़िए, वो बुरा है या अच्छा? हाँ काला अच्छा बुरा अच्छा है। है। सब अच्छा है, हाँ। सोनिया जी कुछ बोलना चाह रही हैं? काला बुरा है। काला बुरा है, अच्छा। हाँ, ब्लैक कलर हम यूज नहीं करते हैं। बाल बुरा है तो सफेद कर दीजिए ना। आप ब्लैक हेयर है, व्हाइट डाई लगाइए ना, जैसे सुचित्रा जी है ना, व्हाइट हेयर, वो नेचुरली व्हाइट हेयर है तो वो ब्लैक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सफेद अच्छा है। लेकिन बहुत लोग सफेद अच्छा है इसलिए, मतलब सफेद ठीक नहीं है, ब्लैक कर देते हैं। तो क्या ब्लैक तो वहां पे बुरा हो गया, सॉरी ब्लैक अच्छा हो गया, ब्लैक तो बुरा नहीं है। व्हाइट हेयर को ब्लैक कर रहे हैं सब लोग, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर द्वंद्व चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है मन में, है ना। सब हमारा परसेप्शन में है, हम कैसे सोचते हैं। ब्लैक इज ओनली ए कलर, इट इज नाइदर गुड नॉर बैड।
white is also a color. Sometimes black is needed, sometimes white is needed. So it depends on our requirement. हमारा requirement के अनुसार है. तो इससे हम जो टेंशन और स्ट्रगल चल रहा है माइंड में, उस स्ट्रगल को देखना है, चेंज करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, चेंज नहीं करना है, सिर्फ देखना है. ठीक है. सो लॉकडाउन इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न. ठीक है. अगर हम गलतियां देखना चाहते हैं तो बहुत गलतियां देख सकते हैं. वो खोजते रहेंगे तो खोजते रहेंगे. हम एक डॉक्टर के पास गए थे फादर को लेकर. तो फादर इस मतलब वो ऑडिट में चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं तो उनका टेस्ट करते हैं, जरूर ब्लड टेस्ट करवाते हैं. कोई हॉस्पिटल वहां पे है तो वो डॉक्टर वो मतलब वहां पे ऑडिट वाले वो बोलते हैं आपका टेस्ट करवा लो, हमारा यहाँ प्लांट में डॉक्टर है, डिस्पेंसरी है, कर लो. तो वो करवा देते हैं. तो हमारे अपना फैमिली डॉक्टर वो क्या बोले हैं, मिस्टर राजू, मिस्टर गंगराजू, इफ यू वांट टू टेस्ट फॉर एनी मिस्टेक एनी प्रॉब्लम्स इन योर डिजीजेस, तो डिजीजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे. बहुत सारे डिजीजेस हैं हर एक शरीर में. अगर उसको खोजते जाएंगे तो खोजते जाएंगे. अभी क्या हुआ लॉकडाउन में, आप कहीं जाना, डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब बंद, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए. डिजीजेस तो इतने नहीं आ रहे हैं. टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा तो उसके लिए दवा लगाना है, दवा लगाएंगे फिर उसको और एक प्रॉब्लम आएगा, एक मतलब एक साइड क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट्स आएगा तो और एक टेस्ट करना है, फिर से वो टेस्ट. तो आप टेस्ट करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकलते ही आएगा. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेलिंग डेंजरस डिजीजेस है उसके बाद अलग है, लेकिन just like that, keep searching for negative things, you will get negative things. But you want to see the positive side, then you will see the positive side. Is it clear? But internal world के लिए अलग है, वो बाद में बताएंगे, क्लासेस में जाएंगे तब पता चलेगा. तो अब मैं बोलना ये चाहता हूं कि हमारे जो लॉकडाउन के सिचुएशन में, लेट अस मेक यूज ऑफ दिस टाइम अच्छा तरह टू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन, टू सी हाउ आवर थिंकिंग इज, बिकॉज आवर थिंकिंग इज ओनली कॉजिंग अस सफरिंग. कैसे हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट द आंसर्स. रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, कहीं हर्ट हुए हैं और वो हर्ट से हम जी रहे हैं और वो सफरिंग में ही जिएंगे. उसको बाहर आने के लिए या हम कोशिश नहीं करते, नहीं तो हम इंडिफरेंट हो गए हैं, हम छोड़ दिए, मतलब हमारा उम्मीद छोड़ दिए हैं, या हम डिसाइड कर लिए हैं कि ये ठीक नहीं होने वाला, भगवान खुद आएंगे भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, डिसाइड कर चुके हैं और ऐसे ही हम जी रहे हैं. Now let us do little bit of introspection. मे भी आपको कोई गाइड प्रॉपरली मिला नहीं हो और कोई आपको ठीक तरह समझाया नहीं. गाइड मतलब ये नहीं कि एक गुरु, आपका फ्रेंड भी गाइड हो सकते हैं, मदर भी गाइड हो सकते हैं, ब्रदर भी गाइड हो सकते हैं, कोई भी गाइड हो सकते हैं. सो ऐसे अगर हम देखेंगे, देन वी नीड टू डू ए लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. आप कुछ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अंतर्मुख के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? प्लीज रेज योर हैंड्स. इफ यू आर रेडी ओनली वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, अदरवाइज वी कांट. Right? Very good. Thank you. Thank you. So that is what is needed. Kiranji, Abhi- 1 minute, Yeah. Kiranji, 1 second. Can everybody turn your videos on, please? That way it will be more helpful Exactly. to interact. Sushma ji, Gopal ji, Nisha ji, Maitri, Rajesh, Suprava, Sanjeev, Sabeshan ji, Premlata ji, please turn your videos on. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gopal ji, Gopal ji. Right. Okay. Right. So where was I? You will have to keep reminding me. I'll be forgetting what I'll be talking. I don't know. Right. So I was Are you studying ready? about. Haji?
Gopal ji, You namaste. said, okay. Go ahead, Krishna ji. You were telling something. Oh, I'm just reminding you that are you guys ready to participate in this class or something like We are that? ready. You tell You are me. ready. Yeah. Correct. Got it. Thank you. So you are ready. You have a desire. एक इच्छा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उतना काफी नहीं. आपका इच्छा है, इच्छा से आप इन 15 दिन का कोर्स में उतना ज्यादा अनुभव नहीं कर पाएंगे या उनका उतना फायदा नहीं कर पाएंगे. इच्छा से नेक्स्ट स्टेप में पहुंचना है. आई विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप. आई विल टेक यू नेक्स्ट स्टेप में क्या पहुंचना है, कहां पहुंचना है. यू हैव टू गो टू पैशन. मतलब आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए. यू हैव टू हैव पैशन, जुनून, फायर मतलब आई मस्ट गेट दिस. फॉर एग्जाम्पल आपके मन में ही द्वंद चल रहा होगा कि आई एम वेरी there is no point thinking I'm lazy. Now what do you want? मतलब क्या चाहिए आपको? आपके अंदर एक विगर चाहिए, एक वाइटैलिटी चाहिए, एक एनर्जी चाहिए. तो अगर आपके मन में ये एक पैशन, एक फायर है, then there is something which you will get. So what is important is your passion. That is a prerequisite for these classes. One second. Sushma ji, do you want to say anything? Sushma ji, I'm trying to mute you, but do you want to say anything? No, I don't. No, I don't want to. Please Could you mute please your voice is Yeah. disturbing the conference. Yeah, okay, fine. Yeah, Now thank it's you. good. Thank you. So you have to have passion. That means you have to have fire. Fire, like if you have a desire, now if you don't get it, it's fine, no problem, it's all right. Now you want to eat a pani puri, you had a desire to eat pani puri. Now, well, in lockdown situation, you are not able to. Then you are struggling, somehow you have to get it. Now you will do something and you will try to get your pani puri and you will be able to achieve it. But then if you just a thought, okay, I had a desire to eat pani puri, but अभी lockdown situation में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं. चलो, छोड़ो. It's all right. And you are not struggling about it. It's fine. No, that's a desire. So if you have a desire, you might or might not get pani puri. अगर आपको इच्छा है तो वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. लेकिन अगर आपको जुनून है, आपको पैशन है, तब क्या होगा? You will definitely strive for it. You will work hard for it. You will have that intent. आपके अंदर वो जुनून रहेगा, वो इच्छा. तो वो जुनून की जरूरत है इन क्लासेस में. इच्छा काफी नहीं है. As I asked you, आपको है इच्छा? हाँ, इच्छा है. Very good. That's the first step. लेकिन you have to move to the next step. अभी से ये नहीं कि मुझे जुनून आएगा, कुछ नहीं. अभी से शुरू करना है, अभी से काम करना है. You have to work inside right now. ये क्लासेस में आपको करना है और मैं कराऊंगा भी और होमवर्क भी दूंगा आपको. तो ये पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं पूछता हूं, पैशन किसके लिए? यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट. व्हाट इज द विजन ऑफ दिस क्लासेस? ना मुझे मत पूछिएगा, मेरा विजन कुछ नहीं है इसमें. आप जैसे क्लासेस में कुछ पूछते रहेंगे, वो विजन के अनुसार मैं चला जाऊंगा. आपके क्वेश्चंस के अनुसार, आपके इच्छाओं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे. मेरा एक बेसिक फ्रेमवर्क रहेगा बस. मुझे मालूम है क्या क्या हमको आपको बताना है, कहां पे आपको प्रॉब्लम्स होगा, क्या क्या उसका सॉल्यूशंस है, वो हम जो जानते हैं वो हम बताते जाएंगे. लेकिन आपका विजन क्या है? मतलब अभी सोनिया जी हैं, सोनिया जी का विजन और कुछ हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा हो ऐसा. और कोई लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का उनका करियर के ऊपर थोड़ा ध्यान है तो वो उनका विजन वो होगा. और लेटर से स्मिता जी हैं तो स्मिता जी का विजन है कि आई मस्ट बिकम वेरी एंटरप्राइजिंग और बहुत बिगर होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट.
नो, किकी कुरानी जी का उनका विजन वो अलग हो सकता है कि मेरा हेल्थ ठीक हो। नो, आई डोंट नो व्हाट योर विजन इज। इस प्रोग्राम में आप सक्सेस पा रहे हैं, सक्सेस नहीं पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्लैरिटी कितना है। आर यू क्लियर ऑफ व्हाट यू आर वांटिंग? आर यू क्लियर अबाउट योर विजन फॉर दिस वर्कशॉप? If you are clear, you will achieve it. If you are not clear, you will be going hither and thither, like a feather is blown by wind of circumstance. You will be moving up and down, but you should be like an arrow where it directly hits the target. So like that you need to have a vision. वैसे vision आपको रहना चाहिए। Now अभी आप थोड़ा सोचिए ये vision के बारे में कि आज हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्यों अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट और 15 दिन अटेंड करेंगे, एक एक दिन में मुझे क्या क्या पाना है इसमें, वो क्लियर रहिएगा। कैसे पाना है हम आपको बताते जाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद भी लेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए, तो वो सब करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चाहिए पैशन, दूसरा आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट ये है कि हम रेगुलर रहेंगे क्लासेस में। ये नहीं कि आज आया कल नहीं आए और उसके बाद थोड़ा कुछ आ गया तो वहां चले जाएंगे। इसका मतलब पैशन इज नॉट इनफ। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है आपको, क्योंकि अगर हमारे सामने बैठते, फिजिकली बैठते, तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान आपके ऊपर है, तो आपको ही थोड़ा दिक्कत होगा उठ के चले जाने में, ऐसा नहीं चलेगा। अभी वहां पे ऐसा नहीं चलता। अभी क्या है, आराम से वीडियो बंद कर देते हैं और पता नहीं चलता, हमको पता नहीं चलता। तो एक रूल है कि वीडियो नहीं बंद करना है, वीडियो ऑन ही रखना चाहिए, पूरा सेशन, फुल सेशन वीडियो ऑन रखने चाहिए। देन आई विल बी एबल टू सी यू। मैं सभी का मैं चेहरा देख रहा हूं, आपका फीलिंग्स देख रहा हूं, आप कैसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। माई आईज आर ऑन ऑल ऑफ यू। जैसे सुचित्रा जी हंस रहे हैं, देखिए, ठीक है, ओके। सो आई एम एबल टू सी यू। तो बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स ऑल्सो आई गेट सम फीडबैक, और उसके ऊपर मैं बात करता हूं। ठीक है, सो दैट इज वाई आप इसमें कमिटेड रहना है। You must be committed for this, that I must grow. No, this is a serious affair. This is not a joke, or this is not just okay, ठीक है सब लोग मिल रहे हैं entertain कर रहे हैं। नहीं, वो entertainment का भी हम थोड़ा टाइम रखेंगे। We can also enjoy talk, पूरा सब लोग सबसे बात करेंगे, enjoy that, that's fine. But I want you to also be very serious. Serious मतलब ये नहीं करके रहना, जैसे आलू जैसे फेस रखना, वो नहीं। That is not serious. You can be laughing, you can be kidding, वो सब हो सकता है, but internally that seriousness has to be there. So इतना क्लियर हो गया। एक हो गया आपका पैशन, आपका एक विजन होना है, क्लियरली जुनून होना है, विजन होना है, और आपका एक कमिटमेंट होना है कि हम रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे, इस तरह। और उसके बाद और एक होमवर्क है, आपको सुनना है, मैं जो बोल रहा हूं ना वो सुनना है। यू हैव टू लिसन टू दैट कंप्लीटली, और उसको कॉन्टेम्पलेट करना है। ये नहीं कि ऐसा आप सुने और उसको कुछ आवाज आ रहा है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आवाज आ रहा है, ऐसा नहीं। आवाज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ग्रहण करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, दीर्घ आलोचन करना है, और अप्लाई करना है आपके जिंदगी में, और चेक करना है कि किरण जी जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल। या अगर आपको लगता है कि वो नहीं एप्लीकेबल है, तब आपको चेक करना है कि मुझे समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको एक डाउट आया, तो आप हाथ उठाएंगे और बोलेंगे किरण जी मुझे यहाँ पे एक प्रश्न है, आप बताइए। ठीक है, तो हम आपको टाइम देंगे। हो सकता है हम तुरंत देंगे, नहीं तो हम बोलेंगे ठीक है, एक मैं फ्लो में जा रहा हूं, बाद में टाइम देंगे। फिर हमको याद रहेगा,
हम आपको 5-10 मिनट के बाद आपको पूछेंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए अभी, या कुछ बताना चाह रहे हैं तो बताइए। इतना समझ में आ गया? यस और नो? सभी को समझ में आया? राइट, वेरी गुड। ओके, विनोद जी, विनोद शाह, समझ में आया? सुनाई दे रहा? राइट, ओके, राइट, वेरी गुड, थैंक यू। सो अभी आपको लिसनिंग के बारे में बताया था, सुनना है। उसमें आप कॉन्टेम्पलेट करना है, मैं बता रहा हूं, सुनना है, सुनने के बाद छोड़ देना नहीं, उसको कॉन्टेम्पलेट करना है। यू हैव टू मैप इट ऑन टू योर लाइफ, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है और वो एप्लीकेबल है या नहीं। और आपको एक प्रोसेस हो जाता है उसमें, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपके अंदर एक प्रोसेस चलता रहेगा। यहां वो बात सुनकर ही नहीं, वो तो 1% 2% है, बाकी जो होगा वो ईश्वर का आशीर्वाद से होगा। द लॉर्ड विल डू द प्रोसेस, बिकॉज हमको एक डिस्कवर करना है कि क्षमा हम नहीं कर पाते हैं। यू विल वॉन्ट टू फॉरगिव, आई एम गारंटिंग यू कैन फॉरगिव बाय योर मेथड्स, इट विल नॉट वर्क आउट। आप जो भी करेंगे वो हेल्प करेगा, लेकिन कंप्लीट फॉरगिवनेस आने के लिए आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। यू हैव टू, वो 2%, मैं बता रहा हूं, आप जो भी मेहनत करेंगे वो 2% 3%। आपको जिनके ऊपर बहुत गुस्सा है, घृणा बहुत है, तो आप चाहते हैं उनको क्षमा करना, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा मन में बैठ जाता है कि मैं क्षमा नहीं करूंगा। चाहे कोई भी आकर आपको बोले तो आप क्षमा नहीं कर पाते। तो कैसे आप क्षमा कर पाएंगे? आपके हाथ में कहाँ है? वहां आपको भगवान के आशीर्वाद चाहिए। और आप अगर कट्टर बैठे हुए हैं कि मैं क्षमा नहीं करने वाला हूं, तो आप खुद भी प्रार्थना नहीं करेंगे ना क्षमा करने के लिए, हे भगवान आशीर्वाद दीजिए मैं क्षमा करूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपको समझ में आ जाता है, अगर मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं तो मेरा ही दुख है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरा हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ये सब आपको बुद्धि है, जानते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते क्योंकि वो हो नहीं रहा। इतना पावरफुल है अंदर घृणा, इतना दुख, इतना डिस्ट्रेस, मिस्ट्रस्ट हुआ है। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, और वहां भगवान की जरूरत है। कैसे आएगा भगवान का, वो भी हम देखेंगे, आगे आगे क्लास में जाएंगे। अभी मैं केवल एक परिचित कर रहा हूं इस क्लास का। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट में हम जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद तो एक है, कभी कभी आप खुद भी प्रार्थना नहीं कर पाते तो वी विल डू ग्रुप प्रेयर्स ऑल्सो, सामूहिक प्रार्थना, सब लोग मिलके। जैसे आपका प्रार्थना आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरों का प्रार्थना वो कर पा रहे हैं, इसलिए उनका प्रार्थना पूरा करने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं मेरे लिए, तब मेरे लिए सोचिए करुणानिधि जी प्रे कर रहे हैं, तो मैं तो प्रे नहीं कर रहा हूं, लेकिन करुणानिधि जी मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, क्या मेरा दुख दूर हो जाए। तो भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं करेंगे, भगवान करुणानिधि जी को आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं प्रार्थना कर रहा हूं। तो करुणानिधि जी का प्रार्थना क्या है कि मेरा दुख दूर हो, तो वो आशीर्वाद करेंगे और मेरा दुख दूर हो जाता है। समझ में आया? कभी कभी हम जब प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, दूसरे अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ग्रुप प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना। The Lord's grace will come in the collective even as it comes in the individual. जैसे इंडिविजुअल को जैसे आशीर्वाद मिलता है, वैसे कलेक्टिव में भी मिलता है, और कलेक्टिव इट विल बी मेनी टाइम्स ओवर। ये है हमारा ये प्री रिक्विजिट्स, आपको ये सब आपको फॉलो करना है ये जो क्लासेस में, ठीक है? तो अभी
अनदर प्रीरिक्विजिट इज योर प्रेयर। अब प्रे करना है। जब भी आपको लग रहा है देन यू मस्ट स्टार्ट प्रेइंग फॉर योरसेल्फ। तो इतना ये जो प्रीरिक्विजिट्स आपको ध्यान से मन रखिए। एंड आई वांट यू टू प्रिपेयर नोट्स। आई विल नॉट गिव यू एनी नोट्स। आपको कोई नोट्स देने वाला नहीं हूं। तो आप जो भी बनाना है एक बुक रखिएगा। यू कीप वन बुक लाइक दिस एंड प्रेफरेबली एक फ्रेश नोटबुक, नया नोटबुक रखिएगा और उसमें एक पेन और बुक रखिए और आप स्क्रिबल करते रहिएगा। यू कीप नोटिंग डाउन पॉइंटर्स। जो भी आपको लग रहा है तो आप नोट करते रहिएगा। एक पॉइंट फिर भूल जाएंगे लगेगा तो नोट करते जाइएगा। अच्छा, ये रहा आपका स्क्रिबलिंग बुक, ठीक है। उसके बाद फेयर नोटबुक एक बुक रखिएगा। अगर आपको फेयर बुक रखने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, ज्यादा पेजेस या कुछ एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू बुक नहीं है इमीडिएटली, तो बैक साइड ऑफ द बुक से शुरू करिएगा। आप एक डायरी भी रख सकते हैं, ओल्ड डायरी या कुछ ऐसा रखना है तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्क्रिबलिंग जरूर करिएगा, फिर भूल जाएंगे। उसके बाद फिर फ्रेश नोटबुक रखिए जहां पे फेयर नोट्स बनाए। कब बनाएंगे फेयर नोट्स? इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास इज ओवर। मतलब 8 से 9 क्लास हो गया, 9 के बाद अगर सोचे आपको डिनर करना है, कुछ करना है तो करिए, बट एज फार एज पॉसिबल रात को ही खत्म कर दीजिएगा नोट्स, फेयर नोट्स, एंड यू कैन इंप्रूव अपॉन इट नेक्स्ट डे। कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं ना? अगर नोट्स नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हैं। मुझे पता चल जाएगा, मैं पूछूंगा आपको कल नोट्स बनाए क्या, तो आप बोलेंगे नोट्स नहीं बनाया, इसका मतलब कॉन्टेम्पलेट भी नहीं किया। अगर कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो आपको डाउट्स आएगा, लिखेंगे, लिखते रहेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अगर मैं नोट्स दे दूंगा आपको तो आपका नोट्स नहीं होगा, वो मेरा नोट्स होगा। अभी हम इतने लोग हैं, नाउ वी आर 33 पीपल इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 33 लोग हैं। नाउ 33 लोगों के लिए अलग अलग विचार आएगा ना, मैं जो भी बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा आप क्षमा करिए, तो आप क्या बोलेंगे? मैं क्यों क्षमा करूं? अभी नीता जी बोलेंगे मैं क्यों क्षमा करूं, ओके। और हमारा चंद्रशेखर जी बोलेंगे नहीं, क्षमा करने से बहुत ठीक हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नो, मैं एक ही चीज में बोल रहा हूं, आई एम ओनली टेलिंग द सेम थिंग, बट देन टू पीपल आर थिंकिंग इट डिफरेंटली। सो आपका जो नोट्स बनेगा तो आपका अपना होगा ना, दूसरों का नहीं होगा। सो यू बेटर प्रिपेयर योर नोट्स। और बाद में फिर आप जितने भी अटेंड किए हैं, हो सकता है ये फ्री प्रोग्राम है, लेकिन अगर इसी को हम चार्ज करेंगे तो आप और ध्यान से अटेंड करेंगे। तो अब ऐसे ही पूरा ध्यान से अटेंड करना है, पूरा लगाव के साथ अटेंड करना है, एज इफ यू आर पेइंग समथिंग एंड गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डायमंड रिंग अगर खरीदा, डायमंड रिंग अगर खरीदा, तो यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको डायमंड रिंग ऐसे ही मिला तो यू विल नॉट बी सो केयरफुल। यू स्पेंड से लेट अस से 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज पे करके अगर डायमंड रिंग लिया तो हाउ विल यू बी, हाउ विल योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट रिंग बी, है ना? अगर ऐसे ही मिल रहा है फ्री में, यू विल नॉट बी सो केयर। बट आई वांट यू टू बिहेव, आई मीन आई वांट यू टू participate like that, as if it is very very valuable, and it will be valuable. It all depends on your passion. That's why I want the best you should get. It is not dependent on my class. मेरा टीचिंग से, मेरा बोलने से नहीं होने वाला, आपका रिसीविंग के ऊपर डिपेंड करता है। I want to explain something here. Teaching is important, the teacher is not important. क्या बोला मैं? Teacher is not important. The teaching is also not important. क्योंकि अभी वो टीचर जो आपको पढ़ाया, कुछ अच्छे अच्छे चीजें आप सीखे हैं लाइफ में, आपका स्कूल टीचर पढ़ाया, वो स्कूल टीचर भूल गए आप। बहुत होता है, कभी कभी टीचर याद रहते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा शिक्षा मिला, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्यों आप अच्छे व्यक्ति हैं? क्योंकि वो टीचर, लेकिन वो टीचर भूल गए आप कौन है। एक टीचिंग दिया, बहुत अच्छा टीचिंग दिया,
तो वो आपको कभी कभी वो टीचिंग भी भूल जाते हैं. सो टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, your application to be transferred, your learning is important. So the whole strength is in your receiving. समझ गए? आपका रिसीविंग के ऊपर डिपेंड करता है. तो टुडे आई हैव जस्ट कवर्ड a few things, little bit of the vision. मैं आपको विजन क्लियरली नहीं बताऊंगा कि क्या होगा, कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, मिनट टू मिनट क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा. ऐसा नहीं होगा क्लास हमारा, क्योंकि हम क्लास नहीं कर रहे हैं. ईश्वर करेंगे, आप रिसीव करते रहेंगे, और जो बोल रहे हैं हम सुन देंगे, उसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which you will be receiving, and there will be a transformation. So the whole vision is for you to be transformed from one state to another state, maybe from a suffering state to a happy state, or from a one kind of thinking to another kind of thinking, which will give you more joy and happiness. तो ये इतना ही है हमारा विजन. सो योर विजन कैन बी वेरी स्पेसिफिक ऑल्सो. तो जस्ट बी विद दैट. हम एक प्रार्थना करते हैं उसके लिए, जो भी आपका मन में है वो पूरा हो. जो भी आपका मन में है, सोचिए मेरे अंदर बहुत घमंड या प्राइड है, तो वो प्राइड खत्म होना है. इन क्लासेस में ये 15 दिन जो मैं अटेंड करूंगा, उसमें मेरा प्राइड खत्म हो, तो एक वो रह सकता है. मेरा बहुत लेजीनेस है, वो लेजीनेस खत्म हो, तो ये भी एक हो सकता है. नहीं तो हमारा एक प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उस प्रमोशन मिलना है, ऐसा भी आप रख सकते हैं. एक मटेरियल डिजायर भी रख सकते हैं. जो भी है, आप एक इच्छा रखेंगे और इसको पूरा करना है. नो, मेरे अंदर एक शांतिपन महसूस हो, मैं बहुत चंचल होता हूँ. एक लेडी आई थी मुझे बरेली में, यूपी में मिलने. तो लेडी आके मुझे बोली, स्वामी जी मुझे मेरा सर के ऊपर हाथ रख दीजिए और आशीर्वाद दीजिए. हम बोले क्या आशीर्वाद, क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? तो बोले मेरा मन बहुत चंचल है, हमेशा सोचती रहती हूँ. तो पूछा क्या सोचती रहती है मैडम? तो बोली कि यही सोचती रहती हूँ कि मेरा बेटे का क्या होगा, उनका क्या पैसा कमाएगा या नहीं, नाम कमाएगा या नहीं, वो अच्छा रहेगा, क्या होगा, ऐसे यही चिंता करती रहती हूँ. तो मैं पूछा अच्छा वो बेटा कितना उम्र का है? तो बोले अभी जन्म नहीं हुआ, अभी जन्म नहीं हुआ. और वो सोच रही है. तो मैं पूछा माँ जी आपका नाम क्या है? तो बोले चंचल, उनका नाम है चंचल. मैंने बोला आप शांति रखिएगा. शांति रखने से शांति नहीं होते हैं, लेकिन शांति रखने से आपको याद आता रहेगा, और वो नाम कर्म है, तो वो शांति ऑटोमेटिकली आएगा. चंचल 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 बोला, वही चंचल 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 ही चल रहा है. जो भी सुनते हैं ना, वो हमारा अनकॉन्शियस में जाता रहता है. तो ये है आपका. तो इसलिए आप जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो मन में क्लियरली रखिएगा, और उसके लिए प्रार्थना करिए. जो भी भगवान आप मानते हैं उनका आशीर्वाद ले लीजिए. आज पहला दिन है, तो आप भगवान का आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और आपका जो भी इच्छा है ये 15 दिन में जो क्लासेस अटेंड करेंगे वो क्लियर होना है करके प्रार्थना करिए. और इन क्लासेस में बिल्कुल आपको ये 5 चीज जो मैं बताया था, एक है जुनून, और एक है आपका विजन, उसके बाद है आपका लिसनिंग और पार्टिसिपेशन, और उसके बाद है आपका प्रार्थना. ये 4 चीज बताया था, करेक्ट? और कुछ बताया था क्या? एक मेन चीज है आपका होमवर्क करना है, ठीक है? लिसनिंग कमिटमेंट also बोला था. कमिटमेंट, या राइट. थैंक यू दिशा, थैंक यू. द यंगेस्ट ऑफ ऑल, द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हमारा दिशा. ओके, सो अभी हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये 5 चीज है भगवान हमको आशीर्वाद करिए, और हमारा प्रार्थना जो है वो इच्छा पूरा करिए. तो इतना आपको
प्रार्थना करना है, हम ही प्रार्थना करेंगे। नाउ डेप्थ ऑफ प्रेयर और हमारा हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, उनको कैसे एक्टिवेट करना है। उसके बाद हमारा हेल्पलेसनेस, हमारा दुख के साथ टच करके हमारा हेल्पलेसनेस, हमारा डेस्परेटनेस, वो सब हम अच्छा तरह समझेंगे। हमारा रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव करना है वो देखेंगे। उसके बाद हमारा जो थोड़ा हमारा सेल्फ जो है वो थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन हम बाद में बताएंगे धीरे टाइम पर, ठीक टाइम पर हम समझाएंगे हमारे सेल्फ के ऊपर, और वो कैसे वो मुक्ति तक पहुंचने का एक समझना वो हम बताएंगे। समझना, यहाँ कुछ ये ऐसा नहीं कि ये इस सेशंस में मुक्ता हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है, उसके बारे में ज्ञान हम देंगे। और उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताएंगे। आज मैं क्विकली मैं बताऊंगा, हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अर्थ मतलब वेल्थ, काम मतलब इच्छा, धर्म मतलब दूसरों लोगों का सेवा करना, और मोक्ष हमारा अपना मुक्ति। ये 4 पुरुषार्थ का क्लास होगा कल। ठीक है, मैं आपको जस्ट संक्षेप में बता दिया। ये 4 चीज आपको जिंदगी में चाहिए, हर एक बार चाहिए, लेकिन ये स्टेजेस में आएगा। पहले अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद धर्म, उसके बाद मोक्ष। सो हमारा इन सब को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में। तो ये जस्ट आपको थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूं, एक चिंता दे रहा हूं कल के लिए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग टुडे आपका साधना होगा, प्रार्थना करना है, ये 5 चीजों में प्रार्थना करना है, उसके बाद आपका इच्छा पूरा करना है। सब लोग 5 लिख दिए हैं, रिपीट करना है। सो हु विल रिपीट इट फॉर मी? Disha, you want to repeat? Yeah, please go ahead. Please. कहाँ से पूछो, कहाँ से? The 5 points are: one is to commit to participate in the classes actively, and then to have a clear vision is the second one, and to have a desire for change, the passion, to listen properly and actively, and to seek God's blessings. Very good. Prayer. Very good. Very good. Very good. Sab tali please. Tali for Disha. Very good. So we will do a prayer now. Okay, we'll do a prayer. How many of you, before we go into the prayer, how many of you have registered for tomorrow's classes? Just raise your hand. There are some guests also, so that's why I want to know. Okay. Okay. If you are wanting to attend but you have not registered, kindly go to sahayata.org/register and fill the form there. There are only 4 or 5 questions, your name, mobile, and other details. So second thing is, we have put you into a group called Sah Leaders DB3. What does Sah is a short form of Sahayata, SAH, leaders group. This is a leaders batch training, leaders. Bracket D is daily, and 3 is batch. B3 is batch 3. This is your 3rd batch. I've already completed 2 batches for 15 days each. This will be your 3rd batch. So you belong to the 3rd batch. Okay. So there is a WhatsApp group. You have been added. If you have not been added into the group, that means maybe your sahayata.org/register, you have not registered there. So please register yourself. Apart from that, you can even call our landline number, or sorry, not landline, our helpline number. Pooja Sahu is attending that number. And Mahalakshmi ji. Mahalakshmi ji, please raise your hand. Mahalakshmi ji, yes. So Mahalakshmi ji will be there. She will help you in registering. She will help you. वो आपको help कर लेंगे. ठीक है, अभी थोड़ा सब लोग आंखें बंद करके, any questions before that? I'll quickly take 1 or 2 questions. किसी को questions हैं तो हाथ उठाइए और unmute करके बात करिए. Unmute करके बात कर सकते हैं. Yes, Krishna. Yeah, so actually
today's 5 points have to have passion, vision, and everything. You said some 5 points over that, but I'm totally confused and not clear about my vision. And Right. I'm not clear about my passion. I don't have a clarity at this point of time. I just want to ask you Right. whether I can gain in these classes or what should I do now? You I will. already sent a personal message to Yeah. you You. in a meeting. Yeah. So those who are not clear of what you want, you will pray to the Lord. Oh Lord, I'm not clear about what I want. So please give me clarity. मुझे क्लियर नहीं है विजन मेरा क्या है, तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज आई वांट एवरीथिंग, या आई वांट मेनी थिंग्स एंड आई वांट डोंट नो व्हाट आई वांट, और आई एम टोटली गॉन, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, आई गॉट डिप्रेस्ड पर व्हाटएवर and then I'm totally gone. I'm not able to thinking clearly. कोई गर्लफ्रेंड का इशू तो नहीं है? Sorry, I don't know whether you're married or not also. Sorry. No, not that. A lot of things, Just kidding. but still, it's not that Yeah, one. I'm just joking. You, thank No, you. I'm just Thanks for taking the it light because normally my yeah. talks are little serious. I'm very focused. Yeah. So just to Mhm. break the ice, I am using that. ठीक है, बोलिए करुणानिधि जी. Thank you. बोलिए करुणानिधि जी. You want to talk? Karunanidhi ji, yeah, please. No, your mic is, we are not able to hear you. No, your mic is not working perhaps. You can type chat, question, chat, put the question on the chat. Manglaji will pick up that question. Please put it on chat. Okay, anybody else? One last question. Anybody please? कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? ओके, राइट, ठीक है, हम अभी प्रार्थना करते हैं. सभी आंखें बंद करिए. Karunanidhi ji will take your question tomorrow. I think your mic is not working and we are running short of time, so we'll take your question tomorrow. आज मैं आप सभी के प्रार्थना करूंगा और आपके लिए एक हीलिंग भी दूंगा, so that you sleep very well, your body is very relaxed and you are prepared for the class again for tomorrow. तो आज वो contemplation में कीजिए, ये 5 थोड़ा contemplate करिए. You try to understand what you are wanting, be very clear and pray for that. ठीक है? So please close your eyes. All of you, please close your eyes. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते. अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे. 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 ॐ
आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति Continue to keep your eyes closed. आंखें बंद करके ही रखें. Experience the divine presence of the Lord. भगवान का उपस्थिति आपके शरीर में, मन में, हृदय में अनुभव करते रहें. अभी धन्यवाद कीजिए आपके इष्ट भगवान को, हृदय में देखते हुए उनको धन्यवाद कीजिए. शांति शांति शांति. ओम. भी धीरे से आंखें खोल सकते हैं. प्लीज ओपन योर आईज नाउ. अभी धीरे से आंखें खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज नाउ जेंटली. मेरा आवाज आ रहा है? You can gently open your eyes. You can gently open your eyes. सभी आंखें बंद, आंखें खोल सकते हैं.
Message bits. Open your eyes. You can gently open your eyes now. Yeah. You can now open your eyes. You're able to hear me? You're able to hear me? Okay, right. Thank you. So please do your homework and we will meet again tomorrow by sharp 8 o'clock. So I request everyone to come a little early, say at least 5 to 10 minutes before. And even if you come early, just wait. There'll be some nice music which will be played. You have any technical issues or technical problem, you can always contact our technical head who is Vignesh ji. Vignesh ji, can you please turn on your video? Vignesh ji, please turn on your video. And we have the numbers also, the helpline numbers. You can contact them. Anything you have, you just put a message in the WhatsApp group which you are added into. So Vignesh ji, can you please raise your hand? Please. I think there's. Yes, that's Vignesh ji. Yeah. So yeah, that is Vignesh ji. And of course, Mahalakshmi ji, can you please raise your hand? She is our helpline. Mahalakshmi ji. That is Mahalakshmi ji. And you are on the WhatsApp group. So you just go through the chat window once. All the details Mangala ji has already posted. On the chat, you can just see and you can copy them in your thing. And I want a quick presentation for 1 to 2 minutes. Vignesh ji, can you please play the presentation last slides, the contact number slides and all that? You can take a picture of that. Vignesh ji, are you there? Vignesh ji? Yes, Ji, I'm just playing. Okay. Just a minute, please. Yeah, these are the numbers, and that is where you have to register. You go to the next slide, the previous one. Yeah, please hold that. Hold that slide. So you can take a picture of that slide and the phone numbers. Yeah, that's it. You can close the slide. Vignesh ji, you can close the slide. Kiranji, I Right. think there are. Sonali ji needs to just say a few words about their experiences in just 2 minutes. We'll just take 2 minutes. Okay. Yeah. Yeah. Sonali ji, please go Sorry ahead. for the delay. We have gone beyond 9 o'clock. So just please take another 2 minutes. She will share her experience. Sonia, Sonali ji, can you please introduce Mangala ji? I want you to introduce Sonali ji. Sonali ji is Guinness Book of Record holder. She's a Odissi dancer, and she has danced for 25 hours continuously. And I would part of Sahayata for more than 8 years, and she's very well associated with us. So she would like to give her experience from whatever she learned from Sahayata. To you, Sonali ji. थैंक यू मंगला जी, थैंक यू किरण जी। 2 मिनट में इतना सारा एक्सपीरियंस बताना तो मुश्किल है, फिर भी थोड़ा सा बताऊंगी। नमस्ते एवरीवन। मैं सहायता से 7-8 साल से जुड़ी हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारा मिरेकल हुआ है। इतना मिरेकल हुआ है कि ओनली किरण जी के गाइडेंस से। तो अभी स्पेशली जो हो रहा था आज, ये जो लास्ट 2 बैचेस में ज्वाइन किया, इसमें मेन जो मेरे में प्रॉब्लम था कि मेरा सब अच्छा है, मैं खुद को अचीवर समझती हूँ या मेरा सबके साथ अच्छा बिहेवियर रहता है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे में एक माइनस पॉइंट ये था कि मेरे को गुस्सा आता था तो मैं कंसिडर नहीं करती थी कि सामने वाला कौन है।
समटाइम बहुत प्यार करती हूँ, सपोज मेरी माँ बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई लव हर लाइक एनीथिंग, आई रिस्पेक्ट हर, लेकिन मेरे को गुस्सा आता है तो आता था तो मैं कुछ भी मीन्स नाराज उनको हर्ट करने के लिए ही सोचती थी, या किसी को भी कोई भी हो, मेरे को पंगा लिए तो खत्म, मैं उसको ज्यादा बोलती थी, मीन्स इतना गुस्सा। आज ये पहला बैच में मुझे उतना क्लैरिटी नहीं मिला था, सेकंड बैच भी मैं कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं मिला था बोल के। ये सेकंड बैच में मीन्स ये 1 मंथ जर्नी में मेरे अंदर से एक 100 किलो का वजन हट गया। मैं समझ पाई कि मेरे अनजान से मैं कितना पाप करती गई, कितने बार मेरे घर के मेंबर को स्पेशली घर में ही, बाहर तो हम आर्टिस्ट है, अच्छा रहते हैं सबसे, कहीं कुछ हुआ तो भी हंस के बेयर करके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली घर में तो हम नहीं करना चाहिए, हम प्यार से रहना चाहिए, और वो मेरे से नहीं हो रहा था। कितना प्रेयर किया मैं, नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो किरण जी ने जो सिखाया हमको कैसे प्रेयर करना चाहिए, कैसे हेल्पलेस फील करना चाहिए, कैसे अपने अंदर के माइनस पॉइंट को देखना चाहिए, जो मैं ये लास्ट 1 मंथ के अंदर देख पाई और मैं इसको निकल पाई। मैं जड़ से निकाल के फेंक दिया। मैं ओथ लिया कि मैं ये जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं करूंगी, और मेरे को मेरे मम्मी या कोई तो कुछ बोले तो भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि मेरे को क्या बुरा लगा, बट मैं मिसबिहेव नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच किरण जी, आई लर्न सो मेनी थिंग, लेकिन मैं अभी 2 मिनट में नहीं बोल सकती, इसलिए आज मेरी बेटी को मैं बोली मम्मा मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं चाहती हूँ कि तुमको भी मिले, क्योंकि हर माँ चाहेगी कि उससे भी ज्यादा उसको बेटी को मिले, कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो नाम हो गुण हो, कुछ भी। तो मैं उसको समझाई, पहले बोल रही थी मम्मा मेरे को तो, मैं तो भी छोटी हूँ, मैं बोली दिस इज द राइट टाइम टू शेप योरसेल्फ, क्योंकि कॉलेज जाओगी, आगे पढ़ाई पढ़ना है, अभी से समझोगी तो फ्यूचर अच्छा होगा, दिस इज द टाइम। तो ओके, मेरा गुड लक है कि मेरी बेटी मना नहीं करती है कुछ भी मुझे, तो वो सुन रही है। और मेरे घर में 2 रिलेटिव भी है, कृष्णा गोपा, वो लोग भी मेरा बात सुन के मान के वो लोग भी ज्वाइन हुए, तो मुझे लगा कि मैं उनको एक पीसफुल लाइफ गिफ्ट दिया। थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much, Sonali Thank ji. you. Thank you very much. And I think we will end this session with thanking all of you, all the participants who just spent more than an hour just listening to this talk and being a part of this, attentively listening. And I wish all of you the best of luck in your endeavors, in your going inward endeavors. And if you haven't registered, kindly register. This course, once you finish this 15 hours of classes and the rest of the time contemplating, there will be growth inside of you spiritually, and there will be success in your field of work, and more importantly your relationships will be fixed. I think I'm one best live example for that. Relationships will, once your relationships are taken care of, I think everything falls into its place. And with this, I would like to thank Kiran ji and all the participants for have given your time and energy and interest in this. Thank you very much. Thank you. Thank you. And just with a closing note of Karunanidhi ji, he was not able to tell, he was trying to tell something. He says, you will be overcrowded from participants if they could get solution about girlfriends. Anyway, namaste, namaste to everyone. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.